میرے دوستوں، عزیزوں، جیسس لنک کے سننے والوں، الفریڈ گیل آلبنی نیو یارک سے آج کی سچی اور اچھی باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ آج کا شو میرا ہے 554 اور شو کا ٹاپک ہے جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے وہ سچا ہے۔ اور یہ تلاوت لی ہے میں نے جو پاک کلام کی یوحنا رسول کی انجیل اس کا 8 باب 23 سے 26 آیات تک پڑھوں گا، اور یہ ٹاپک وہاں پر موجود ہے کہ جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے، اور خداوند سے بڑا سچائی تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے میں پڑھتا ہوں، اور اس حوالے میں یوں لکھا ہے، اس نے کہا کہ تم نیچے کے ہو، یعنی تم زمینی ہو نہ آسمانی ہو۔ اس نے کہا کہ تم نیچے کے ہو نہ اوپر کا ہو، تم دنیا کے ہو نہ دنیا کا نہیں ہو۔ کیا بات ہے! خدا کے پاک کلام کی منہ کی باتیں اور بہت بڑی گواہی ہے۔ تم نیچے کے ہو نہ اوپر کا ہو، تم دنیا کے ہو نہ دنیا کا نہیں۔ اس لیے میں نے تم سے کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے۔ اس لیے میں نے تم سے کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ انہوں نے ان سے کہا تو کون ہے؟ تو اس وقت کے لوگوں نے، یہودیوں نے، فقیوں، فریسیوں نے، پھر جب اس نے یہ باتیں ان سے کہی تو اس نے ان سے کہا، لوگ پوچھتے پھر تو کون ہے؟ تو پھر اس نے یسوع نے کہا کہ ان سے کہا میں وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں۔ مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے، لیکن یہ میرا ٹاپک ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے۔ خدا باپ جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے، اور جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں کہ جو میں نے اپنے باپ سے سنا، جو باپ مجھے بھیجنے والا ہے، جو آسمانی باپ ہے، جو کچھ میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں۔ خدام کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدام اپنی بڑی برکت بخشے، آمین۔ تو میں اپنا شو شروع کرتا ہوں، اور شو سے پہلے ایک جو بہت خوبصورت تحریر ہے، اور اس تحریر کا جس نے ٹینا ولیم نے علامہ اقبال کے متعلق اپنی ٹائم لائن پہ ڈالی، اور اس مین جو اس تحریر کی جو صحیح بات ہے، احساس کی بات ہے۔ تو احساس جب تک نہیں ہو تو ہمیں خدا کی باتیں جو کہ سچا ہے وہ سچا ہے اور عادل ہے، ہم نے جب تک احساس نہیں ہوگا یہ ساری باتیں ہمارے لیے بیکار ہیں۔ تو ٹینا ولیم نے لکھا کہ 1922 میں علامہ اقبال لاہور میں ایک کرائے کے مکان میں رہتے تھے، اور مکان بدنما اور ٹوٹا پھوٹا تھا، اور اس کا کرایہ بھی زیادہ تھا۔ دوستوں میں سے کسی نے پوچھا، حضرت یہ مکان کسی وقت بھی گر سکتا ہے؟ تو علامہ اقبال نے جواب دیا، ہاں یہ تو میری دعاؤں سے ہی قائم ہے۔ پوچھا گیا، آپ اتنا کرایہ بھی دیتے ہیں اور اس کرائے میں اس سے بہتر مکان مل سکتا ہے؟ تو علامہ نے جواب دیا، آپ ٹھیک کہتے ہیں، لیکن
आपको मालूम नहीं। यहाँ से जो सही बात एहसास की बात है, तो इलामा ने उनसे कहा कि आपको मालूम नहीं कि ये मकान एक हिंदू बेवा का है, हिंदू बेवा का, जो कि उसके मजहब की नहीं, इलामा इकबाल के मजहब की नहीं, तो वो हिंदू है, और जिसके बच्चों की गुजर औकात उस मकान के किराए पर है, और किराया कम करने में शर्म आती है। ये एहसास की बात है कि लामा इकबाल साहब को जो बड़े नाम पैदा करते हैं, वो बड़ी बातें भी करते हैं। और उसने बहुत खूबसूरत बात की, एक तो किराया तो ज्यादा है, मैं समझता हूँ, मकान भी अच्छा नहीं, पुराना है, बहुत सारी मुश्किलें हैं, लेकिन मैं अगर किराया कम करने के लिए कहूँ, तो फिर जो गुजर औकात है उसकी और उसके बच्चों के लिए, तो मुझे किराया करने में शर्म आती है। और हमने ये अगर एहसास पैदा हो जाए, तो हमारी बहुत सारी कबाहतें, बहुत सारी मुश्किलात, और हम बिल्कुल फिर हम उस खुदा पर ईमान हमारा पुख्ता हो जाएगा कि जिसने, यस्सु ने अपने बाप के मतलब कहा कि जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है, और उसकी सच्चाई की बातों को हम कभी नहीं जितला सकते। बहुत खूबसूरत तहरीर। और उसके बाद बहुत ही खूबसूरत जाज़म आइजक साहब ने मजहब के हवाले से बहुत खूबसूरत जो बहस की, जो मजमून लिखा, और मैं समझता हूँ बहुत सच्चाई के साथ जो मजमून जाज़म आइजक साहब ने लिखा है, तो मैं पढ़ता हूँ, और जरूर गौर करना जब आप इस शो को देखें, सुने, और जरूर जो गौर करना। मजहब का मतलब है रास्ता और ईमान, रास्ता, सच्चा रास्ता, अच्छा रास्ता जो खुदा के घर की तरफ जाता है, और ईमान भी पुख्ता ईमान जो खुदा ने जो बनाया सब कुछ, उस पर पुख्ता ईमान। और यही जाज़म आइजक साहब लेके हैं, आप हिंदू हैं, सिख हैं, मसीह हैं, मुसलमान हैं, यहूदी हैं, पारसी हैं, देवबंदी हैं, कादियानी हैं, बुद्ध हैं, या कोई और मजहब या फिरका, कोई फिर विरासत फिरका फर्क नहीं पड़ता, किसी भी फिरके से हो, किसी भी कौम से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मजहब ने आपको नहीं चुना, फिर विरासत में भी नहीं पाया, फिर आपने ये विरासत में मजहब नहीं पाया और उसे अपनाया है। हकीकत में आप सब इंसान हैं, बिल्कुल हम सब इंसान हैं। और इस मजमून में आगे बहुत खूबसूरत जाज़म साहब ने आगे लिखा है, खुदा ने जब इंसान को बनाया नारी और नारी, और बिल्कुल वहां मजहब का जिक्र की बात नहीं, और वो यही बताना चाहते हैं हमें कि मजहब जो था वो हमने मजहब बनाए हैं, खुदा ने किसी मजहब का जिक्र नहीं किया, ना अपने नबियों के हवाले से, ना अपने किसी और पैगंबरों। तो वो लिखते हैं खुदा ने सिर्फ इंसान बनाया, मजहब नहीं बनाया। खुदा ने सिर्फ इंसान बनाया, मजहब नहीं बनाया। देखिए तौरेत की किताब पैदाइश 1 बाप उसकी 27 आयत, और खुदा ने इंसान को बनाया, अपनी सूरत पर पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। और इससे आगे बढ़कर देख लीजिए, पूरी तख्लीक खुदाबंदी में मजहब का जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब है कि पैदाइश में जहां से खुदा ने दुनिया बनानी है, सब कुछ इंसान बनाया, सब कुछ चांद सूरज सितारे बनाए, अगर हम वहां से ये पढ़ना शुरू करें पैदाइश से, तो हमें सब चीज बिल्कुल यहाँ हो जाएगी। खुदावंद के कलाम की बातें, खुदावंद के मुंह की बातें, कि उसने सिर्फ इंसान को बनाया और नर और नारी बनाया, और खुदावंद में मजहब का नहीं जिक्र नहीं, बल्कि
पैदाइश इससे आगे बढ़कर देख लिए कि पूरी तख्लीक खुदामंदी में मजहब का कहीं जिक्र नहीं, बल्कि खुदा बुजुर्गवार ने अपने किसी नबी या पैगंबर को ऐसा इख्तियार हरगज नहीं दिया। जब खुदा ने अपने नबी पैगंबर बहुत सारे उस वक्त के लोगों पर, यहूदियों पर, इसराइलियों पर भेजता था, लेकिन किसी मजहब की नहीं तबलीग करते थे, किसी फिरके की नहीं। सिर्फ अगर खुदा की जो नबूवत की बातें थी, जो खुदा उनको भेजता था, वो उनको बताते थे। ना कोई भी नबी, कितने नबी हुए हैं, लेकिन किसी नबी ने नहीं कहा कि अब मेरे पीछे आओ, मेरी बातें सुनो, मैं खुदा हूं, मुझे खुदा ने ये कहा, मुझे खुदा ने रूपा नहीं। सिर्फ कोई मजहब नहीं था। और बहुत खूबसूरत जाज़म साहब आपने ये मजमून लिखा, मजहब का कहीं जिक्र नहीं, बल्कि खुदा बुजुर्गवार ने अपने नबी या पैगंबर को ऐसा इख्तियार हसगर नहीं दिया। अपने पैरोकारों को किसी अलग रास्ते पर ले जाए। सारे मजहब से, सारे मज़हब से शुरू होते हैं, मगर बाद में सिर्फ अपनों की खैर मांगते हैं। और ये सारे मजहब, जो सारे फिरके, सारी फिरका बंदियां शुरू हुई, वो नाम तो खुदा का लेके शुरू करते हैं, लेकिन बाद में सिर्फ वो अपने की खैर मांगते हैं, अपने के लिए या अपने खानदान के लिए। मैं समझता अपनों के लिए नहीं, सिर्फ अगर करते तो अपने खानदान के लिए करते हैं और अपनों की खैर मांगते हैं और खुदा के बताए हुए रास्तों की बजाय, ये सबसे बड़ी खूबसूरत बात कि खुदा के बताए हुए रास्तों की बजाय आपने ही रास्ते इख्तियार कर ले हैं। और बिल्कुल ये सच्ची बात है, देख ले कि हर कोई अपने ही रास्ते चाहता है। वो पाक कलाम की बातें जरूर करता है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं जो कह रहा हूं, मेरा रास्ता, जो मैं रास्ता बता रहा हूं, और वो इस बात को भूल जाता है कि जिसने खुदा के बेटे को भेजा है वो सच्चा खुदा है। हमने खुदा जो वो सच्चा और आदल और अमीन, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, हम उसकी बातों को नहीं, हम चाहते हैं कि मेरी बातों को माना जाए, तो वो को पसंद नहीं। क्योंकि जो इंसान का दुश्मन है, जो इंसान का दुश्मन है, वो खुदा का दुश्मन है। इसलिए कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया, अपनी छवि पर बनाया और अपना दम उसमें फूंका और उसी की पसली से नारी निकाली, ताकि ये एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत करें। और आदम ने भी जब नस्ल शुरू की, जब उसके बच्चे बच्चियां सबको हुआ इस दुनिया में फलना फूलना शुरू हुआ, तो उसने भी कोई मजहब का जिक्र नहीं किया और वो खुदा की बातों पर ही अमल करता रहा। तो वो खुदा का दुश्मन है। अपने खुदा बनाना मुनाफिकत है। जो हम अपने अपने फिरके, अपने खुदा, अपने गिरजे, अपनी कलीसिया बना रहे हैं, वो क्या है? वो मुनाफिकत है। इंसानियत सब बराबर है, सब पर एक जैसा प्यार है, इंसानियत सारी बराबर है। और यही सबसे बड़ी बात है कि हम इंसानियत को भूल चुके हैं, कि इंसान को भूल चुके हैं, उस इंसान को जिसने खुदा ने बनाया, जिसने अपनी शक्ल और सूरत पर बनाया। खुदा यीशु मसीह ये कहता है कि वो सच्चा है। जब वो खुदा यीशु मसीह अपने बाप के मतलब कहता है कि वो सच्चा है, जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है, तो हम क्यों नहीं उसको, उसकी सच्चाई को मानते? हम क्यों मजहब बना रहे, हम क्यों फिरके बना रहे, हम क्यों इंसानों को बांट रहे और क्यों चाहते हैं कि मेरी मानो
तो इसका मतलब है कि खुदा के हम दुश्मन हैं। अगर हम इंसानों के दुश्मन हैं, अगर हम इंसानों में फिरका बंदियां डालते तो हम खुदा के भी दुश्मन हैं। क्योंकि खुदा प्यार है, खुदा इंसान को प्यार करता है और इंसान को ही उसने असर मखलूकात बनाया। तो फिर जाहिर है जब खुदा कह रहा है कि जो खुदा को नहीं प्यार करता, वो इंसान को नहीं प्यार करता, वो खुदा का दुश्मन है। और उसके बाद जहालत और फिरका बंदी, मुनाफिकत। एक आप फैसला कीजिए कि आपने जहालत की तरफ जाना है या आपने फिरका बंदी की तरफ जाना है या आपने उस खुदा के कलाम की तरफ जाना है जो सच्चा और आदल है। हमने ये फैसला करना है। और हम इन चीजों के दरमियान में लटके हुए इंसान को, जो कि हम लोग खास तौर पर जहालत में है, हमारी इतनी तालीम नहीं, इतना नहीं, हम चाहते हैं कि मेरी बातों को सुनो, मेरी बातों को मानो जो मैं कहता हूं। और इंसान तो, हमारे लोग तो जाहिल हैं, जिनको तालीम और तरबियत है ही नहीं। तो फिर आपने ये फैसला करना है कि आपने किस तरफ जाना है। आपने उस खुदा की तरफ जाना है कि जो सच्चा और आदल है, जिसके मतलब खुदाम यीशु मसीह कहता है उसका बेटा है कि जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है। तो जब हम ये मानते खुदा बाप और खुदा बेटा और रूहुल कुदुस, तो फिर हम उसकी सच्चाई को और उसकी सच्ची और अच्छी बातों को क्यों नहीं मानते। उसके बाद रोजलिन आपदा की एक बहुत अच्छी पोस्ट, किसी के जज्बात को इतनी चोट ना पहुंचाओ कि उससे जब भी आपका ख्याल आए तो सिर्फ तकलीफ ही मिले। बिल्कुल, बहुत बड़े एहसास की बात। और ये जो एहसास है वो हम इंसानों में मर चुका है। और हम अपने मतलब की खातिर, अपनी जरूरत की खातिर जो इंसानों को चोटें पहुंचाते ही रहते हैं। और हमें इस चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि इतनी चोट ना पहुंचाओ कि उससे जब भी आपका ख्याल है तो सिर्फ तकलीफ मिले। और ये 100% जब भी हमें जो लोग धोखा देते हैं, जो प्यार की तकलीफें देते हैं मतलब की खातिर और बहुत सारी चीजों, तो जब वाकई मैं जाती तौर पर भी इन बातों को सोचता हूं तो सोचता ही रह जाता हूं कि ये क्या होता है, इंसान क्या करता है मतलब के लिए, दौलत के लिए, अपनी बढ़ाई के लिए इंसान को क्या क्या तकलीफें दे देता है। उसके बाद हाले दिल एक पोस्ट है, उन्होंने लिखा है कि बीवी, बहुत सही पोस्ट है कि एक बीवी अपने शौहर को घर में अलैदगी, मतलब जब शादी होती है तो कहती है कि अलग रहो, अलैदगी पर मजबूर करती है। मगर वही औरत या वही बेटी जो अपने घर में, अपने माँ बाप के घर में, मगर वही औरत वालिदैन के घर जाकर, मतलब जब अपने वालिदैन के घर में जाती, माँ बाप के घर में जाती है, तो भाइयों को बहुत बड़ी समझने वाली, और समझने क्या, ये तो हो रहा है दुनिया में, सबके साथ हो रहा है। और वो ही अपने भाइयों को इकट्ठा रहने की तलकीन करती है। मतलब बीवी जब बन जाती तो वो अपने शौहर को उसके माँ बाप से तो अलग कर देती है या अलग कहने पर मजबूत करती है। लेकिन वही बेटी, वही बहू जब अपने घर में जाती है तो अपने भाइयों को नसीहत करती कि तुमने अलग नहीं रहना, तुमने अपने माँ बाप के साथ रहना है, अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, अपने माँ बाप की खिदमत करनी है। क्या बात है, क्या दोगली किस्म की पॉलिसी है। और हम वाकई हमने इन सच्चाइयों से पीछे हट गए हैं। अगर खुदा की सच्चाई को, जिसको उसका बेटा कहता है कि वो सच्चा है, तो फिर हम उसकी सच्ची बातों को क्यों नहीं मानते। बहुत खूबसूरत बात
اس کے بعد آفتاب اقبال وہ جو شو کرتا ہے خبرناک اور بھی کافی شو کرتا ہے کر رہا ہے، اس نے بہت اچھی پوسٹ لکھی اور وہ ساری باتیں اب دیکھتے ہیں ٹی وی پر، بہت مقبول شو ہے۔ اس نے لکھا ہے فیکٹریاں بند ہیں تو ندی نالوں کا پانی صاف ہو گیا ہے، اگر نیوز چینل بھی بند ہو جائیں تو ملک کا ماحول بھی صاف ہو جائے گا۔ 100%، اگر 200% بھی میں کہوں تو بات سچی ہے۔ آپ دیکھیں کیا روز کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑ، کل بلاول بھٹو نے کہا جی وزیر اعظم ریزائن کر دے، استعفیٰ دے دے کیونکہ ان کو کام کرنا نہیں آتا۔ کیا بات ہے، مطلب کتنی میں سمجھتا ہوں گھٹیا بات ہے کہ جو ملک کو چلا رہا ہے وہ چھوڑ دے اور پھر اربوں ڈالر پھر قرضہ لے، پھر الیکشن ہو اور یہ غریب لوگ جو کرونا کی وجہ سے پہلے ہی مر رہے ہیں اور زیادہ مرنا شروع ہو جائیں۔ لیکن جہاں پر یہ، اور ساتھ یہ بھی بڑی پوسٹ آج خبر تھی کہ سندھ میں خاص طور پر لڑکانوں میں اور کراچی میں کتوں کی اتنی بہتات ہے، اور کل بھی کسی بچے کو کاٹا، اور وہ اس طرف خیال نہیں ہے، حکومت لینے کا خیال ہے، کرسی لینے کا خیال ہے، لیکن اس طرف خیال نہیں ہے کہ جو کراچی کی عوام ہے، سندھ کی عوام ہے، جو غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے، اس کی طرف دھیان نہیں، اسلام آباد کی طرف دھیان ہے۔ تو بات تو سچی کہ اگر یہ ٹی وی چینل بند ہو جائے یا جو انکر، یہ بہت سارا آگے یہ ایک اور بہت اچھی پوسٹ ہے، تو یہ جو انکر ہے یہ بالکل جو لوگوں کو جہالت سے نہیں نکلنے چاہتے ان کو ضرور کچھ نہ کچھ ان کے لیے سبق ملنا چاہیے ان کو۔ تو اس وجہ سے ہمیں بہت کچھ سوچ سمجھ کے خود فیصلے کرنے کہ ہمیں جہالت سے نکلنے نہیں دیا جا رہا، غلامی سے نہیں۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ فیکٹریاں بند ہونے سے ندی نہ، یہ بالکل پہلے لوگ کپڑے کھالوں پر جا کر دھوتے تھے، بہت سارے کام، ایون پانی تک کھالوں سے پیتے تھے جو نہر کا پانی آتا تھا۔ لیکن اس کے جب یہ انسان ترقی کی طرف جا تو پھر جو گٹر کا پانی، فیکٹریوں کا پانی، جو باتھ روم کا پانی، جن کے گھر نہروں کے اوپر ہیں، انہوں نے سارا کچھ اس میں ڈالا اور وہ پانی گلیز ترین ہو گیا اور لوگوں نے ان کو استعمال کرنا بند کر دیا۔ تو یہ کتنی گندگی کی بات ہے کہ اب واقعی فیکٹریاں بند ہوئے اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ صاف ستھری ہو رہی ہیں۔ تو خدا کرے کہ ٹی وی والے بھی بہت تماشا لگاتے ہیں اور انسانوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو الیاس مسیح نے بہت اچھا لکھا، بہت سچائی کی باتیں، پورا نام ہے الیاس مسیح الیاس، اور تخلص بھی الیاس کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے انسان ہر طرح اپنی بڑائی چاہتا ہے، اور یہی جازم آئزک کا جو مضمون تھا یہی اس میں سب کہ انسان اپنی بڑائی چاہتا ہے کہ خدا نے تو کوئی مذہب نہیں بنایا تھا، نہ کوئی فرقہ بنایا تھا، قومیں تو بن گئی باب آدم کے بعد، یہودی بھی بٹ گئے، اسرائیل اور یہودا دو قبیلے ہو گئے، پھر اس کے بعد قومیں بنتی گئی، اسی وقت فقی فریسی کتنی قومیں بنتی گئی، اور پھر رومیوں کی حکومت آ گئی تو قوموں کی تو انتہا ہو گئی۔ لیکن جو مذہب اور فرقے، سب سے پہلے اگر میں ایک بات کہوں تو خدا نے سب سے پہلا وہ خود بہت بڑا قائد اعظم وہ تھا، وہ خود اسرائیل سے یا اس وقت کے لوگوں سے ہم کلام ہوتا تھا، پھر نبیوں کے ذریعے، سب سے پہلے موسیٰ کے ذریعے، پھر نبیوں کے ذریعے، پیغمبروں کے ذریعے، لیکن انسان پھر قابو سے باہر ہو گیا، کیونکہ انسان کو خدا میں سمجھتا ہوں اگر برا نہ مانے تو خدا بنا کر ہی پریشان ہوا کہ اس نے تو کوئی بات اس کی مانی نہیں اور آج تک نہیں مان رہا۔ پھر اس نے اپنا بیٹا بھیج دیا کہ شاید اب یہ انسان بندے کا پتر بن جائے
उस बेटे को भी सूली पर चढ़ा दिया, फिर भी वो उसकी बातों की तरफ भी माइल नहीं हुआ। फिर मजहब, फिरके, और आज का तो हर कोई छोटे छोटे फिरके कौम को बांटते ही जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जो खुदा यीशु मसीह कहता है कि जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है, तो इसका मतलब है कि हम उसकी सच्चाई की बातों को नहीं मानते। ना हमने खुदा की बातों को माना, ना हम उसके बेटे की बातों, ना खुदा यीशु मसीह ने सिर्फ उसने एक ही बात कहा शमौन पतरस को कि मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा। सिर्फ उसके बाद वो कलीसिया बनी, और आज जितनी भी उसके बाद कलीसिया बनने शुरू हुई सिर्फ उसकी मुखालफत में बनती गई। और अब ये हो गया कि कोई भी अपना नाम लेकर, वो चर्च भी किसी नाम से नहीं, अपने नाम से लोग बना रहे हैं। दूसरा शेर बनाया गया थे खाक का पुतला, एक खाक का पुतला बनाया गया था, उस खाक के पुतले में खुदा ने सांस डाली थी। आज ये लोगों में खुदा चाहता है वो खाक का पुतला जिसको खुदा ने बनाया था, आज वो अपनी बढ़ाई चाहता, अपनी खुदाई चाहता। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात लिखी है इलियास मसीह ने। बनाया गया था ये खाक का पुतला और आज ये लोगों में खुदाई चाहता है। क्या बात है। उसके बाद दिखावा ही दिखावा है, बिल्कुल दिखावे की बातें हैं। इस पाक कलाम की सच्चाई की बातें नहीं कि जिसमें खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं, लेकिन जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है। हम उसको भी, उसकी सच्चाई को भी नहीं मान रहे, ना हम उसके बेटे की सच्चाई को मान रहे हैं। हम चाहते हैं जैसे लिखा है कि दिखावा ही दिखावा है, 400 उसका। हम दिखावे की बात, मैं रोज कहता हूं, देख लो टीवी पर, फेसबुक पर हर कोई बाइबल मुकद्दस लेके बैठा हुआ है। हम जो हमारे जो पास्टर साहबान हैं, हम उनको नहीं मान रहे। जो हकीकत में चीजें उनको हम चलो ठीक है मजहब बन गए, लेकिन अब मजहब क्या है, अब तो फिरके बन गए हर एक। वो किस लिए? लालच के लिए, कि हमें लालच है, काम नहीं कर रहे और गरीब लोगों से चंदे और देयकियां वसूल करके लोगों को बांट रहे हैं। बहुत अच्छा, पता नहीं है कितनी ऊंचाई चाहता है इंसान, पता नहीं ये कितनी बड़ी ऊंचाई चाहता है। कहाँ इसका मतलब है कि वो ऊंचाई चाहता है कि जहां पर खुदा बैठा है मैं वहां पर जाकर बैठू। क्या बात है इंसान की कि वो उस सच्चे खुदा को, जिसको उसका बेटा कहता है कि जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है, तो हम ना खुदा को मान रहे, ना खुदा के बेटे की बातों को अमल करते हैं। वाह वाह, बल्ले बल्ले करे सारे लोग इसकी। और बिल्कुल इंसान जो कुछ भी चाहता है वो ये चाहता है कि उसकी वाह वाह बल्ले बल्ले हो, ढोल बजे, हार डाले जाए। और देख लो रोज हार डाले जाते हैं, बड़े खुशी के साथ हार डाल के तस्वीरें बनाते हैं। लोग लोग पाए इसकी दुहाई चाहता है कि लोग रोज शोर करें जिंदाबाद कि इसकी बल्ले बल्ले, इसकी जय हो, यीशु की जय नहीं हो, उस बंदे की जय हो जो चाहता है कि नैन चाहिए। तो क्या बात है, यीशु की जय नहीं, खुदा बाप की नहीं, हालेलुया नहीं, सिर्फ बंदे को जो खुदा ने पुतला बनाया वो अपनी बल्ले बल्ले चाहता है। करता है नेकी सदा खुदा के पाक मेरा, करता है नेकी सदा खुदाए पाक मेरा। और नेकी वाकई खुदा पाक करता है। और इससे बड़ी क्या नेकी है कि उसने अपना बेटा हमारे लिए भेज दिया, हम इंसानों के लिए। लोग पाए इसकी दुहाई चाहता है कि सारी करता है नेकी सदा खुदाए पाक मेरा। ये फिर भी करना बुराई चाहता है, और फिर भी उस खुदाई की बुराई करना चाहता है, और अपनी भुलाई करना चाहता है, या अपनी ऊंचाई करना चाहता है। क्या इंसान की बात है, और बिल्कुल सच्ची बात। और हमारा मुल्क तो बिल्कुल तबाह ही इन्हीं बातों में हो गया कि हर कोई चाहता है कि मेरी मानो, मेरी मानो। हुकूमत में भी
सियासी तौर पर भी, रूहानी तौर पर भी, जितने भी, चाहे मुस्लिम फिरके हैं, चाहे क्रिश्चियन फिरके हैं, मसीही फिरके, वो सब इसी जोर पर लगा रहे हैं कि मेरी मानो इवन कोरोना सारी दुनिया को परेशान, और हम उसकी भी, उस पर भी सियासत कर रहे हैं और उस पर भी खूब तस्वीरें बना रहे हैं। क्या बात है इंसान की दश्ते। एक शेर है और इलियास मसीह का, अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे। बिल्कुल हमने जागना है, हमने फैसला करना है कि हम बेटा वो सच्चा है, जिसने मुझे भेजा वो सच्चा है, तो हम उसकी सच्चाई क्यों नहीं मानते। हमने कब फैसला करना है कि हम बिल्कुल जब पूरी तरह एक बार फिर गुनाहों में डूब जाएंगे, बदी से अब नहीं तो कब भागोगे, अब बदी से अब नहीं तो फिर कब भागोगे। क्योंकि इंसान तो आपको सबक तो बहुत दे रहा है, लेकिन वो अपने लिए, अपनी जय के लिए, अपनी बल्ले बल्ले की, जैसे उसने लिखा है कि आज लोगों में खुदाई चाहता है, वाह 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 वाह, बल्ले बल्ले करें सारे लोग उसकी, लोग पाए उसकी दुआई चाहता है कि लोग उसको जिंदाबाद करें, उसको जय जय करें। खुदामंद और खुदा के बेटे को नहीं, दश्ते तन्हाई हमारा कसूर ये था कि हमने हर शख्स को खुद से ज्यादा जरूरी समझा, और बिल्कुल जो ये काम करते वो बुरी तरह, बहुत बुरी तरह फेल हो जाते। वो तो भलाई के लिए काम करते, लेकिन वो भलाई उल्टी उनके सर पर आ जाती है, और वो भलाई मुझको बहुत नुकसान पहुंचाती है। और ये भी वही बात है कि खुदा के लिए नेकी तो करना है, करते रहना है, करना चाहिए, लेकिन हम नेकी का बदला बुराई में देते हैं, और ये बहुत बुरी बात, ये इंसानियत की और एहसास की बात नहीं। और हम उस खुदा को क्यों नहीं सच्चा मानते जिसकी मुंह की बातें सच्ची हैं, जो बेटा उसका आकर उसने फिर एक बार इंसानों को सीधा करने की कोशिश की। हम मानते तो हैं, लेकिन हम सिर्फ मुंह से मानते, लेकिन बड़ाई हम चाहते हैं। इत्तेजाज हसन की बहुत खूबसूरत बात, मैं मौलाना तारक जमील साहब की बात से इत्तफाक करता हूं, कुछ अनकर सारा दिन झूठी बिल्कुल। और इत्तेजाज हसन सिर्फ एक ये बंदा है, और एक वो क्या है, बहुत अच्छा इंसान है, वो भी नाम भूल गया, वो भी सिर्फ 2-4 बंदे हैं जो सच बोलते हैं, और उनकी कोई सुनता नहीं है। और कुछ अनकर सारा दिन झूठी और गैर मुसद्दका खबरें देते हैं, यहां तक कि खबर गलत साबित हो भी जाए तो अपने झूठ पर डटे रहते हैं, और इनसे जवाब तलबी लो तो रो रो कर सारा गांव सर पर उठा लेते हैं कि आजादी अजहारे राय पर हमला हो गया। क्या बात है। और ऐसे सहाफियों और अंकरों ने ये बात, ऐसे अंकर को ताहयात पाबंदी लगनी चाहिए, और कोई भी नहीं। आप देखें क्यों शोर कर रहा है बिलावल के हुकूमत छोड़ दो, तो कि वो फेवर कर रहा है, क्योंकि उनका बाप भी उसमें शामिल है। अभी जो बंदा पकड़ा गया वो झूठे और सारे, तो वो चाहते हैं कि चूंकि सारे किसी ना किसी बुराई में कैद से, जेलों से होकर आए या जेलों, तो वो चाहता है कि ये उतर जाएगा, तो हम झूठे लोगों की जो बचत होगी और हमारे ताए चाचे जो भी हमारे सियासी लीडर हैं वो बच जाएंगे। बहुत अच्छा। उसके बाद मसीह लियास की एक खूबसूरत गजल और है, अपने मन में झांकना चाहिए, अपने मन में। हम दूसरों को देखना चाहते हैं, दूसरों को लेकिन हम अपने मन के अंदर नहीं झांकते, हम अपनी आंख का शतीर नहीं देखते, हम दूसरों की आंखों का छोटा सा दिन का भी देखते हैं। और यही वजह कि हम अपने मन में झांकना चाहिए, सिर्फ खुदा से मांगना चाहिए। हमने खुदा से क्यों हम इंसानों से मांगते, दे यकियां चंदे ये सब इंसानों से, और वो भी गरीबों से। मेहनत करें, काम करें, जैसे रोज भट्टा कल
जो कल था, मजदूरों का दिन था, तो क्यों नहीं हम भी उनमें शामिल होते कि मेहनत करें और अपने बच्चों के मुंह में हलाल की कमाई डालें। खुदा की मेहनत करके जो खुदा ने इंसान को सजा दी कि खून और पसीना जब तक तेरा नहीं बहेगा, तो हम तो कुर्सी पर बैठकर कमाना चाहते हैं और खुदा की बातों को तोड़ मरोड़ कर लोगों को बयान करके हम उन्हीं से पैसा कमाना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत। सिर्फ खुदा से मांगना चाहिए मुखालफे मसीह का हर ख्याल को, और जो मुखालफे मसीह है, जो खुदा बाप और खुदा बेटे की बातों के मुखालिफ है, यीशु नाप ने डांटना चाहिए। और हमें उन लोगों को, हम जहालत में जाहिल हैं, हम उनकी बातों में, हम उनको नहीं डांटते कि झूठ बोलते, और यही वजह कि हम किसी ना किसी तरह गुलामी में, कि हम खामोश रहते और उनको सब कुछ जी जो तुम कहते वो ठीक कहते, सच तुम कहते, लेकिन हम इसका मतलब कि हम खुदा को झूठा कहते हैं और उनको सच्चा कहते हैं। यीशु नाम में डांटना चाहिए। दूसरे को मापने से पहले, दूसरे को देखने नापने से पहले कि हम दूसरों को मापते हैं कि ये ठीक नहीं, ये गुनहगार है, ये शैतान। लेकिन जो दूसरी लाइन बहुत अच्छी लिखी है, अपने आप को मापना चाहिए। हम दूसरों को बुराई से पहले हम अपने आप को देखें, हम अपने आप को मापें कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हम किधर हैं। हम दूसरों की बुराई मुंह खोल के कर देते, लेकिन हम अपनी बुराई को अच्छाई में बदलना चाहते हैं। और ये आजकल की इंसानियत है, दूसरों को। उसके बाद हर 44 की बीवी से, दोस्तों, वो यूसुफ जब था, उसके उस वक्त के जो हुक्मरान था या जो भी था, 44 था उसका नाम, 44 या 44 की बीवी ने उससे जो उस पर हमला किया, अभी मेरे साथ प्यार कर, बुराई कर, तो यही उसने मिसाल दी कि हर 44 की बीवी से दोस्तों दामन बचाकर भागना चाहिए, कि ऐसे लोगों से जो उसकी बीवी की तरह, और यूसुफ ने जैसे दामन बचाकर चला गया और उस पर इल्जाम लग गया और वो जेल भी, लेकिन खुदा उसके साथ था। उसी 44 ने उसको, वो उस वक्त के बादशाह ने उसको अपना जो दाया बाजू या असिस्टेंट या जो भी था, बहुत सारे सूबों पर, बल्कि वो ही सारा इख्तियार उसके पास था, लेकिन चूंकि वो सच्चा था, खुदा को मानता था, खुदा की सच्चाई को, और उसने अपने आप को जो ढोलने नहीं दिया गया। आखिरी शेर है, आजमाइश से बचने के लिए, आजमाइश से बचने के लिए अलियास रूह में भागना चाहिए। हम आजमाइश से तब बच सकते हैं इन फिरकों से, इन मजहबी फिरकों से, इन लोगों से जो सिर्फ खुदा की बातों को उल्ट पुल्ट करके अपने लालच के, हमें खुदा से मांगना चाहिए। वो जो सच्चा और आदल है, जिसके मुतल्लिक को उसका बेटा कहता है कि मुझे जिसने भेजा वो सच्चा है, तो हम क्यों नहीं उसके बेटे की बात मानते, हम क्यों खुदा बाप और बेटे की बातों को नहीं मानते। और उसने कहा कि हमें अलियास तखल्लस भी है, अलियास रूह में भाग, हम रूह की कुव्वत मांगे और इन कुव्वतों से, झूठी कुव्वतों से बचे। उसके बाद नौरीन अहमद का एक शेर है, हवा की चादर नहीं, नौरीन अहमद, हवा की चादरें ओढ़े हुए सियाद फिरते हैं। हवा की चादरें, जो ऐसे, जो झूठी चादरें कह लो, या जो चादरें इधर फकीरों फकारों पर, कब्रों या ऐसी बातें समझ लो। परिंदे अब फजाओं में कहाँ आजाद फिरते हैं, और वाकई परिंदे भी इतनी आजादी से नहीं फिरते, क्योंकि दहशत है। तो जब इतनी फजाओं में इतने शोर है, शराबा है, जहाज है, और कितना कुछ फजाओं में, जहाँ परिंदे आजाद, और अब वो भी हर चीज इंसान ने ले ली, तो परिंदे भी देखभाल कर ही उड़ते हैं। और आज की सच्ची बात, आखिरी और सच्ची बात, कि मैं अक्सर सोचता हूं कि दर्दमंदी के जज्बे ने मुझे कैसे कैसे दुख पहुंचाए हैं। बिल्कुल सच्ची बात है।
اور یہ آپ بھی سوچیں, آپ خود بھی دیکھیں کہ آپ نے جہاں جہاں درد مندی کی, جہاں جہاں پر یہ سوچا کہ ان کی ہمدردی کرو, ان کی مدد کرو, اور آپ نے وہاں سے کیسے کیسے دکھ سہی, کیسے کیسے کی مشکلیں سہی, اور کیسے کیسی مخالفتیں سہی, اور وہ اس خدا کو بھول جاتے ہیں کہ جو سچا اور عادل ہے, جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے, اور اس بات کو بھی بھول جاتے کہ ہم نے اس سچے خدا کے پاس اس کی بادشاہت کے سامنے جانا ہے, اور وہی ہماری حساب کتاب ہونا, اور ہمیں اس دنیاوی چیزوں کا سارا حساب کتاب دینا. پھر وہ دیکھے گا کہ وہ سزا اور سزا دینے کا وہ مالک ہے کہ کس جگہ پر جانا ہے, ہمیں شیطان کے ساتھ کھڑا ہونا یا خدا کے بیٹے کے ساتھ کھڑا ہونا. بہت خوبصورت خدا کی باتیں. اور ایک بار آخر میں جو میں تلاوت پڑھوں گا وہ یوحنا کی انجیل اس کا 8 باب اس کی 23 سے 26 آیت تک یوں مرقوم ہے. اس نے ان سے کہا تم نیچے کے ہو. اس نے اس وقت کے لوگوں کو, یہودیوں کو, پکے فریسیوں کو, جو بھی تھے, کہ تم نیچے کو, زمین کے ہو. اور بالکل ہم تو زمین کے, آسمان پر تو خدا یا خدا بیٹا ہے, اور وہ آسمان سے ہی کلمہ مجسم ہوا تھا, اور میں اوپر سے ہوں کیونکہ میں اوپر سے آیا تھا, ظاہر ہے وہ آسمان سے آیا تھا. تم دنیا کے ہو, میں دنیا کا نہیں ہوں, اس لیے میں نے تم سے کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے. اس لیے کہ ہم دنیا سے, ہم گناہ کرتے ہیں, حکم دلیاں کرتے ہیں, خدا کی باتوں کو نہیں مانتے, خدا کے حکموں کو نہیں مانتے, انسانوں کو غلط راستے پر چلاتے. تو اس کا مطلب ہے ہم خدا کی باتوں کو نہیں مانتے, اور جو انسانوں سے محبت نہیں کرتا اس کا مطلب ہے خدا کا بھی دشمن ہے. تو اس لیے مرو گے, کیونکہ اگر ایمان نہ لاؤ گے تو میں وہی ہوں, تو اپنے گناہوں میں مرو گے. اس نے ان سے کہا, انہوں نے, اس وقت کے لوگوں نے پوچھا کہ تو کون ہے. اس نے جب بتایا کہ میں اوپر سے ہوں, میں نیچے کا نہیں, تم نیچے. لیکن پھر بھی وہ ان باتوں کو نہیں سمجھے اور سوال کر رہے ہیں کہ تم کون ہو, کہاں سے ہو. یسوع نے ان سے کہا وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتے آیا ہوں کہ مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے کہ تمہارے متعلق میں کیا فیصلہ کروں, کہ تم برائی کی طرف شیطان کے نرگے میں ہو, اور مجھے تم سے فیصلہ کرنا ہے. لیکن جس نے مجھے بھیجا, یہ میرا آج کا ٹاپک تھا کہ جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے, اور جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں. کیا خوبصورت خدا کی باتیں, خدا کے منہ کی باتیں, اس کے بیٹے کی باتیں, کہ جو کچھ میں نے اس سے سنا, جو کچھ میں نے اس سے تعلیم پائی, وہی میں آپ کو کہتا ہوں. تو آج کا شو جو میرا اختتام پذیر ہوتا ہے, خدا آپ کے سب کے ساتھ ہو, آپ کو اس کرونا وائرس سے بچائے, آپ کے اہل خانہ کو, ساری دنیا کو خدا کے سامنے جھکے سچے اور اچھے دل سے, سچائی کے ساتھ, خدا کی سچائی کو مانتے ہوئے. اگر ہم خدا کی سچائی کو مانتے ہوئے پورے دل سے, پورے سچائی کے ساتھ اس سے اپنی بلے بلے نہیں چاہیں, خدا کی بلے بلے جائے, یسوع کی بلے بلے کریں, تو پھر خدا ضرور سنے گا. اور یہ کرونا وائرس ساری دنیا سے, پاکستان کے لیے, امریکہ کے لیے خاص طور پر, جہاں بہت زیادہ لوگ مر گئے ہیں, مر رہے ہیں, دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, ساری دنیا کے لیے دعا کرتا, اپنی مسیحی قوم کے لیے دعا کرتا ہوں. اور جہاں جہاں بھی ہے, خدا اپنی حفاظت و پناہ میں رکھے, اور آپ کو اس کرونا وائرس سے آپ کو پوری طرح سے جو کچھ بھی درکار ہے, خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے آپ کو سب کچھ وہ ملتا رہے. یہ مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے خدا یسوع مسیح کے وسیلے سے, آمین. گاڈ بلیس پاکستان, گاڈ بلیس جیسس لنک ٹی وی, آمین.